बारिश है, इम्पैक्ट होता है हर जगह। मैं भी यहाँ सुनने आता हूँ, कभी आप लोगों से सीखता हूँ इंडिया मार्केट में, क्योंकि मेरा लंच टाइम होता है 2 बजे के बाद, 2:30 के बाद So, बॉन्ड वाले आ जाएंगे, मार्केट में Hardesh आ जाएंगे। ji, quickly, before we go to Darya ji, what's your if I ask you a number on Indian markets, so what number do you see? Where do you see Nifty headed over next 3 to 6 months, and where do you see INR headed over next 3 to 6 months? INR पे प्रेशर रहेगा जब तक यूएस की सिचुएशन, यूएस डॉलर नहीं करेगा। आज भी इन्होंने जो पॉइंट बढ़ाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इंपोर्ट कंट्री, हम सारा इंपोर्ट करते हैं। ये सही है कि हम यूएस से नहीं करते, पर बाकी कंट्रियों से तो करते हैं ना, उनकी सबकी हालत खराब है। तो आईएनआर तो रहेगा साहब, ये 80 के बीच में जाना नहीं है नीचे, एटलीस्ट 1 साल तक। अब यहाँ मकान आज की डेट में हालत अफोर्ड करना मुश्किल हो गया कि 7% मॉर्गेज मिलती है, जो कि भी 2.5-3% होती थी। तो ये इम्पैक्ट आएगा साहब, इंडिया बचा नहीं रहेगा। ये ठीक है कि इंडिया के इंटरनल इशू नहीं है, इंटरनल फैक्टर माइक्रो लेवल पे कोई नहीं दिखता, बट मैक्रो जो होगा वर्ल्ड में, वो इम्पैक्ट करेगा इसको, इंडिया को डेफिनेटली। Fair enough. So we'll go to Darya and then Fabio and probably Anand ji and other speakers as well. Sarvinder ji is also here. So, Vishal, एक second. Vishal bhai, I just have 10 seconds point if I can make, and then you all can actually remove me from sure. the and then- So the decoupling that we are talking about, it's not market decoupling. The bigger decoupling is of the economy, where the world GDP is projected to be in negative, while India is still going to grow at 6%. In FY23 and FY23 we are going to grow at more than 6%. But in FY24 too, we are growing at 6%, and this is not any government data or something. This is the data provided by World Bank. So the bigger decoupling has happened on the economic level rather than on the markets. Yeah, that is what I had to mention. You all can remove me from the speakers. Fair enough, Fabio. Thanks, yeah. मैं खुद remove कर दूंगा, but be over here, so I can call you back. Yeah. Fabio is so close to me. So, Amit bhai, let's take Darya's view, and Harbir ji also didn't complete. Probably Sarvendra and Anand bhai is also there, and Ketan is there. So step by step सबको लेते हैं. हाँ. Yeah, Darya. सर मेरा कोई व्यू नहीं है, मेरा तो एक्चुअली क्वेश्चन है। आई एम अ वेरी न्यू इन्वेस्टर, अमित जी को पता है ऑलरेडी। सो अभी जैसे मार्केट डाउन गया तो मैंने I bought a few shares for Tata Steel and Tata Power और कुछ और शेयर्स लिए। तो मतलब कुछ और recommendations हैं, और अगर है तो should I wait for investing in new shares, or should I have what should be the strategy for the next few days at least? मुझे, because I'm very new to the market and you can throw me out if I ask you very silly questions, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं समझ आता, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों को। नहीं, यहाँ कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है, तो I would just like to correct you over here. And as far as stocks are concerned, I think a lot of spaces on Amit bhai's lot of spaces we keep talking about investment decisions, या और market advice हम देते रहते, stock specific देते रहते हैं. So you can continuously keep following us and keep joining on these spaces, and probably you can DM either of the speakers. We may be in a better position to answer you the questions, because given that we have close to 800 listeners over here, I don't want to quote a stock which can perform or underperform going forward. So it's because any stock which we talk about would be for educational purposes. We are not SEBI registered advisors, so we won't be recommending any stocks on public forums. Yeah. Hanji, Harbir ji, over to you. Then Anand bhai and Sarvendra bhai. Thank Wait you, karna bhai. मेरा जो ऋषि जी ने बात करी कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इतनी परसेंटेज हमारी बढ़ गई, और पहले हमारे यहाँ पे इतनी एसेट क्लासेस नहीं थी। कुछ कारण उसके अंदर में ईपीएफओज के जो मैंडेटरी फंड फ्लोज के लिए जो चीज़ उनको बोली गई है, वो भी एक मैटर करता है। इट्स नॉट बैड, होना कोई चीज़ बुरी नहीं है, बट एक चीज़ नॉर्मली एक आदमी अगर अपनी SIP चलाता है, इट इज़ हिज व्यू कि हाँ मेरा पैसा कहाँ लगाया जाए, बट जो
पैसा उसका पीएफओ में जा रहा है, जो उसका ईपीएफ कटवाता है, ही वांट्स इट कि भैया उसके अंदर में जो है वो मेरे को कोई ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली में यूके में हुआ है कि उनके पेंशन फंड्स मरते मरते बचे, जो कि सबने सुना भी, और आई मीन व्हाटएवर द न्यूज़ दैट वी हैव हर्ड, अगर कल को जिसकी अगले 25 साल बाद या 20 साल बाद जिसका टाइम आ रहा हो और उस टाइम पे उसके लिए वो चीज़ की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी जिम्मेवारियां कौन लेगा? दैट इज व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन कि जो अपनी सैलरी में से पीपीएफ कटा करके जबरदस्ती का, उसको पता है कि उसमें से भी 10-20% जो है वो मार्केट में ही लगेगा, चाहे उसकी वो चॉइस है नहीं। सेकेंड पॉइंट, जो यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो डाटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे जिसको हम बात करते हैं कि हम जिनको देख करके चलेंगे, चाहे वो जीडीपी डाटा है या सीपीआई डाटा है। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे बात ये होती थी कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मारुति या टाटा मोटर्स कितनी वॉल्यूम कितनी कर रहा है। अब वॉल्यूम की बजाय इट इज कैलकुलेटेड ऑन दी वैल्यू पार्ट। तो अगर 100 बड़ी गाड़ियां 1-1 करोड़ वाली बेच दी गई, तो वो 100 करोड़ की वैल्यू को काउंट करेंगे। वो उसके अंदर में 5 लाख वाली कितनी गाड़ियां उसके बीच में चली जाएंगी, उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। माई पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग टू ऋषि जी वॉज ओनली बेस कि जो ये बात करते हैं ना कि सर हमारे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अंडर करेंट्स में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिसको कि कभी आप ओवरलुक नहीं कर सकते। रेस्ट बाकी जो बड़े हैं वो अपना बता सकते हैं अपने व्यूज इसके बारे में। सिर्फ हरबीर जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो यूके पेंशन फंड का जो पंगा हुआ है वो बहुत बड़ी इशू है, लिक्विडिटी की इशू है, और वो इम्पैक्ट करेगा पूरा, नॉट ओनली यूके, बाकियों को भी इम्पैक्ट करेगा। और वो बड़ा पेंशन फंड है, उसके पास पैसा नहीं है आज की डेट में, मार्जिन कॉल आया। सर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस अर्लियर आल्सो इवन इन यूएस आल्सो, जहां पे कि उसको 401 के करके बोला जाता है, एंड पीपल सीम टू बी वेरी वरीड कि कल को जिस वक्त उनका रिटायरमेंट का टाइम आएगा उनके पास पता नहीं कितने पैसे आएंगे उनके खाते में कि क्या होगा। आई एम नॉट दैट बिग अ गाय, आप लोग बहुत सीनियर्स हैं यहाँ पर, बट ये है कि यस आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑन दिस न्यूज पार्ट एंड डाटा पार्ट, एंड उन चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। I'd like to ask you people, all people over here, a question. इतनी बड़ी कोई गवर्नमेंट रहती है, whether it be यूके और यूएस, इंडिया, बड़ी इकोनॉमीज की बात करो, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, कोई छोटी कंट्री की बात नहीं कर रहा। कितनी कंट्री ऐसी डिफॉल्ट करती है? कौन डिफॉल्ट करता है? छोटी कंट्री करती है। तो ये हमारा प्रॉस्पेरिटी जो है ना, हम पोर्टुगल का 2008 में मैंने सुना था जब मैं नया नया मार्केट में था, कौन सा बड़ी कंट्री डिफॉल्ट करता है कि भैया वो उसको वोट ना दे के जाएगा, उसको सबसे बड़ा चीज है कि भैया मुझे वोट आना चाहिए, मेरी कंट्री की इकोनॉमी की जो भी होगी देखी जाएगी, मेरा जो बुजुर्ग आदमी था 60 ईयर्स 70 ईयर्स जिसका जो भी एज लिमिट रहेगा उसको मुझे पेंशन देना है। कल को फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आ जाएगा भैया हम पेंशन नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट बोल देती है या कोई भी गवर्नमेंट आए बोल देती है, तो आपको क्या लगता है उसकी गवर्नमेंट चलेगी? रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो बातें सोचते हैं ना, ये हमें दिखाई जाती है किसी और पर्पज से भटकाने के लिए, ये हमें सिर्फ दिखाया गया, पीछे कुछ और कार्यक्रम चल रहा होगा उनका। ये है ना, मैंने एक बहुत बड़ी बुक पढ़ी थी जो आज शायद नेट पे भी अवेलेबल नहीं है, जो मेरे सिर्फ फ्रेंड के पास है, उसका भी कोई पीडीएफ वर्जन उसके पास रहेगा तो रहेगा। तो ये सब मैनिपुलेशंस होते हैं मार्केट में कि कहीं से डिस्ट्रैक्शन करना है किसी और पर्पज के लिए, वहां से डिस्ट्रैक्शन करके किसी और पर्पज के लिए ले जाएंगे। तो ये सारी बात नहीं, आपकी बात को थोड़ा एक सेकंड के लिए बस यहीं पर बात बीच में करना चाहूंगा। इंडिया में बड़े सारे बैंक्स का डिफॉल्ट हुआ है, हर एक को पूरा पूरा पैसा मिला नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट लेट मी कंटिन्यू सर। बात ये नहीं है कि कोई क्या करता है और उसके पीछे की क्या कहानी है क्या नहीं, बट माय व्यू पॉइंट इज अ पर्सन शुड हैव अ चॉइस। देखिए मैं अगर एसआईपी कर रहा हूँ वो मेरी चॉइस है, मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल को मेरे को लग रहा है मैंने को एग्जिट करना है, आई हैव एन ऑप्शन, आई कैन एग्जिट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको याद हो तो पीछे में भी अभी उन्होंने वो भी लिमिट भी लगाया था कि हाँ आप इससे ज्यादा का आप जो है विड्रॉल पे आपको नहीं करने दे रहे। तो मैं मानता हूँ वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरे को जरूरत है सर, अगर मेरे को तब पैसा ना मिले तो फिर
बाकी तो उसके बाद में आगे हो या पीछे हो, मेरे को उससे क्या लेना देना। माय ओनली सबमिशन इज दैट, एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग ज्यादा इन चीजों को इंट्रिकेसी ज्यादा समझते हैं। आई एम जस्ट अ वेरी लेमैन पर्सन एंड आई स्पीक ओनली द लेमन लैंग्वेज। थैंक्स हरबीर जी, थैंक्स। मैं आपको स्पीकर से रिमूव कर रहा हूँ। वी हैव विनोद ओवर हियर। या विनोद, आनंद सर को लेना पड़ेगा। हाँ, विनोद भाई की बात सुन के फिर आनंद भाई को लेते हैं। आनंद जी प्लीज बने रहिए। हेलो या विनोद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा 2-3 व्यू था। एक तो ये था कि जैसे मान लो कि स्पेस, या कल भी मैंने शरद भाई का स्पेस सुना था, तो उसमें जिस हिसाब से इतना नेगेटिविटी का बात हो रहा है मार्केट के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट गिरेगा। विनोद भाई वो छोड़, किसने क्या सुना, हाँ, व्यू पॉइंट क्या है ये बताओ। हाँ, क्या वो सब चीज छोड़ नहीं, दो। मार्केट के ऊपर ही बात। हाँ, मार्केट के नहीं, मार्केट के ऊपर ही बता रहा हूँ सर मैं कि हाँ, जब सब लोग हेलो, बोलिए विनोद जी, बोलिए। हेलो, हाँ विनोद जी बोलिए। आवाज आ रहा है मेरे? हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब लोग इतने नेगेटिव मार्केट के ऊपर इतने नेगेटिव हैं, तो नॉर्मली मार्केट नहीं गिरता है ऐसी कंडीशन में, और अपना मार्केट भी नहीं गिरेगा। चलिए, तो आपका क्या अपसाइड में क्या टारगेट है और नीचे में क्या स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी का? मेरा जो टारगेट है ना सर, वो हम बहुत जल्दी 20,000 क्रॉस करेंगे। ठीक है। 12,000 तो, हाँ, 12,000 क्यों नहीं आएगा उसका भी मैं एक लॉजिक देता हूँ आपको, कि मार्केट का जो जो भी मार्केट न्यू हाई बनाता है। विनोद भाई 12,000 क्यों आएगा? वही बता रहा। हाँ, वही बता रहा। वो छोड़ो ना, आप 20,000 क्यों आएगा उसका लॉजिक दे दो। और 20,000 आने के लिए अभी 17,000 पे हम बैठे हैं, तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी बता दो, बस सिंपल। मैं ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। आप 20,000 कैसे आएगा और क्यों आएगा, उसका लॉजिक क्या है और क्या स्टॉप लॉस होगा, वेरी सिंपल। चल, वो चले गए, वो बुरा लगा उनको। तो आनंद सर है, आनंद सर बोलते। हेलो, कौन भाई, अपने बोल दिया करो ना, कौन बोल रहे हैं? हेलो, अपना नाम तो बोल दोगे। हाँ, सुन रहे हैं। सर्वेंद्र। हेलो, हाँ सोच, बोलिए। हाँ जी, मैं नैवेश बोल रहा हूँ सर। सर्वेंद्र जी से मेरा क्वेश्चन था कि मैंने उसका लास्ट वीक में न्यूज पर देखा था कि 16,000 निफ्टी आ सकता है, और वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉल था उनका। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के रिगार्डिंग उनका क्या व्यू है नेक्स्ट। अच्छा, एक काम करो, उनका पर्सनल था, तो आप पर्सनल पे डीएम पे जाके बात करो। उनका कुछ था जो आपने कहीं सुना रहेगा, तो डीएम पे जाके बात करो। हम सर्वेंद्र सर को पर्सनली बुलाएंगे डिस्कशन करने के लिए। मार्केट में सर्वेंद्र सर पेंडिंग है अभी हमारे बात करने के लिए। ओके सर, ओके, आई वेट। सर उन्होंने कुछ बोला है पर्सनली या किसी पे, तो आप उनको पर्सनली डीएम कर देना। हमें सर्वेंद्र सर को भी सुनना होता है। हम ऐसा नहीं कि सर्वेंद्र सर को वेट कराते थे टाइम पर, क्योंकि इतने लोग बोलने आते ना। शरद सर बोलते तो हम खुद चुप हो जाते। तो जब सर्वेंद्र सर बोलेंगे तब आपका क्वेश्चन हो तो आ जाना। अनंत सर, अभी अनंत सर, चंदा मामा, बोलो। हेलो, किसी को सुनाई भी दे रहा है? आनंद जी सब सुनाई दे रहा है। आप बोलो विशाल, क्या चल रहा है? I just came in. I was in the spaces, but I was not listening. बोलो. I'm sure you would be busy playing poker. Yeah, I was. We just ended. Okay. So I was not listening. बताइए क्या मार्केट दशा है, दृष्टि है? दशा दृष्टि घूम गया, मार्केट खत्म हो गया। जो बाउंस आया एक दिन के चांदनी हो गई खत्म। नाउ गेट रेडी फॉर द मार्केट टू गो डाउन। कल ही बोला था ना, irrespective of whatever the RBI governor does, whatever be the interest rate, market खुलेगा नीचे, वापस बाउंस करेगा। It's done exactly that. 17,170 was the wave 4 level. टेस्ट किया, उसके बाद में 150 सवा 100 पॉइंट का सेलिंग आया।
इट्स परफेक्ट क्लासिक सेटअप है, नीचे जा रहा है, जाएगा। हाँ, इमीडिएटली एक्सपेक्ट द बॉटम, रिसेंट बॉटम अभी 16,800 का, फिर वापस टेस्ट करेगा, उसके बाद में और जाएगा नीचे। आई एम एक्सपेक्टिंग 1,000 पॉइंट फॉल स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर। So 16,200 is very possible in the next week. Next week 5th holiday है, तो और एक 2 दिन दो, बस, that's all. हेलो, आनंद जी, हाँ, बोलो बोलो। ये पीछे की आवाज किसकी आ रही है इतना? विशाल, शायद बहुत आवाज आ रहा था, मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ 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 हाँ, पीछे बहुत आनंद जी का कहीं बैठे हैं शायद, वहां से आवाज आ रही है। अरे आनंद सर का नहीं है, मुझे पता है। भले ही देखिए, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, झगड़ा भी कर लेंगे ना, मैं लास्ट में एक चीज बोलता हूँ, हम सब साथ में रहते, कोई फर्क ना पड़ता। तो मैं आनंद सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आनंद सर, इफ यू कैन हियर मी, आपसे क्वेश्चन है सर। सर, एक ओपन एंडेड व्यू दे दे कि ये हमेशा आएगा, ये क्लोज एंडेड व्यू दे दे कि ये इस टाइम पर आ जाएगा, क्या करना चाहिए सर? एंड यू नो सर, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आनंद भाई, अरे ये म्यूट करने वाला हो तो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, लेट इट बी। नो आई थिंक देयर वाज बैकग्राउंड में देयर वाज सम इशू। आनंद भाई, देयर वाज सम इशू इन द बैकग्राउंड, तो इसके लिए म्यूट। हाँ बोलिए सर। म्यूट, oh, you know how I hate being muted while I'm talking. It's not right. It's very disrespectful. While you call, you respect the speaker. ऐसा नहीं होता है। Anyway, my view I have already explained. The point is, जैसे कल रात को बोला था, yesterday in the spaces, 17,170 is wave classic wave 4 level that has tested and it has started going down. Today Dow is down. Irrespective of whatever the Dow is down, Nifty will do its pattern. The pattern right now is pointing to downside. So let's look at the downside now. 16,800 पहले देखते हैं, then 16,200. I expect that to be reached by end of next week. 5th is a holiday, so maybe we will go to another by Monday or Tuesday of next week. 1,000 पॉइंट का तो गारंटीड दिख रहा है यहाँ से। सर, ओपन एंडेड स्टेटमेंट है कि क्लोज एंडेड स्टेटमेंट है ये आपका? I don't understand your close-ended statement or open-ended statement. सर, मतलब कि ये इसी वीक आ जाएगा, क्योंकि आप टाइम एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो, मुझे पता है। तो मतलब ये इसी वीक आ जाएगा, गारंटी वाला है, मैं पुट लेके बैठ जाता हूँ। ओपन एंडेड है तो मैं पुट नहीं खरीदूंगा। एज सिंपल एज दैट सर। Amit bhai, he's been talking. Anand bhai has consistently been bearish on the markets, and he's talking about 14,200 on the indices. तो probably you should look at probably 6 महीने साल भर आगे का पुट लेके बैठ जाना चाहिए, is what I would say. क्यों आनंद भाई? पुट लेके बैठा होता ना, 14,000 का भी पुट लॉन्ग डेटेड में लीप जो चलता है ना, तो उसमें मेरा पैसा जाता है। एज सिंपल एज दैट। बड़ी बात तो मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ चला जाएगा। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है करने के लिए। इसके लिए मैंने को पूछा था, सर क्लोज एंडेड स्टेटमेंट है कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है? उनको इसके लिए चीज का बुरा लगता है। तो अमित, let's go to सर्विंदर जी। आनंद जी, आनंद जी की आवाज नहीं आ रही है, वो शायद फिर कहीं बिजी हैं। अच्छा चंदन जी, नेक्स्ट मार्केट सिंपल नेक्स्ट वीक का व्यू अपने 6 महीना थोड़ी देखने वाले हैं जी। अमित भाई, मैं एग्जैक्टली मैं एक बात यही बात डिस्कस करने वाला था आप लोग पूरी टीम के साथ, अपने साथ। देखो, मार्केट में 2 तरीके से पैसा बनता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट से, जिसमें कि बाजार में क्या हो रहा है एक हफ्ते में और एक महीने में और 6 महीने में, 1 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छी कंपनियां चुननी होती है उसमें, जिसका डेट कम हो, जिसके पास लैंड बैंक हो, जो डूबने वाली नहीं हो, उसमें ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली पैसा लगाते रहिए। आपको पैसा प्रॉफिट आएगा, ये गारंटेड आएगा। ये एक यही पैसा होता है जब गारंटेड पैसा आएगा। दूसरा होता है ट्रेडिंग। जब मैं ट्रेड करता हूँ, पता नहीं आप लोग भी बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं कोई भी ट्रेडिंग व्यू लेकर बाजार में नहीं उतरता।
मैं सिर्फ अपना ट्रेड प्लान लेकर उतरता हूँ कि ये भाव के बाद ये एक्शन लेंगे, ये भाव के बाद ये एक्शन लेंगे। जब वो भाव अप्रोच करता है तो ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। अगर व्यू लेके ट्रेड करने जाने लगे ना तो पैसा तो बनने वाला है नहीं। या मैं अपना अपना मेरा अपना मानना है कि अगर हम कोई भी आदमी अगर व्यू लेके जा रहा है ना तो पैसा बनाना बहुत टफ होगा या उसको ट्रेड करना ही टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने व्यू में मंदी सोच लिया, जैसे कल का फॉर एग्जांपल था, कल रात को डाउ देख के या एसजीएक्स देख के जिसने मंदी सोच ली दिमाग में, उसको आज तेजी नहीं रही होगी, उसको तेजी होना उसके बस की नहीं है। या आज डाउ देख के फिर जिसने मंदी सोच ली, कल बाजार मंदा हो तो शायद ट्रेड ले लेगा, बट बाजार तेज हो गया तो उसके पास कोई ट्रेड प्लान ही नहीं है करने के लिए, क्या करने वाला है वो। तो भाई इतना सोच के कि मंदी मंदी तेजी तेजी दिमाग में बैठा लोगे ना तो ट्रेड से पैसा नहीं बनने वाला। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है आज 500 पॉइंट नीचे जाने वाले हैं या 500 पॉइंट ऊपर जाने वाले हैं। आपको तो अपने स्टॉक्स पता है जिसकी कंपनी के सिर्फ बहुत एक बेसिक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। कंपनियां चुनो जिनके पास लैंड बैंक बहुत सारा हो, मतलब वो डिफॉल्ट नहीं होंगी। जिनका डेट कम हो, मतलब वो डिफॉल्ट नहीं होंगी। ऑर्डर बुक देख लो, क्या उसके पास काम है 2 4 5 साल के लिए या नहीं है। क्या उसका उसका काम ऐसा तो नहीं है जो काम बंद होने वाला है। ये 4 चीजें फुलफिल होती हैं, प्रोमोटर चोर नहीं है। 5 चीजें निकालो और उसमें अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। कहीं भी जाए बाजार, क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला, कहाँ डाउ गया, कहाँ निफ्टी की, क्या फर्क पड़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट का मतलब 5 साल 10 साल तो टाइम दो। अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हो 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो मैं इतना लंबा व्यू सोच के कि एक हफ्ते में क्या होगा, मुझे कहाँ से पैसा होने वाला है। जब आज सुबह अब ट्रेडिंग प्लान था ना जो हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि 17,020 टूटेगा तो लॉन्ग करेंगे। 17,020 टूटा, पहली बार टूटा 3 दिन के बाद, जैसे टूटा लॉन्ग कर लिया, 200 पॉइंट मिल गए खाने के लिए, खाली बैठ गए, फिर पोजीशन खाली करके छोड़ के चले गए। कुछ नहीं चाहिए अपने को भाई। अगर 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में निफ्टी में 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट मिलता है खाने के लिए, तो पूरा एक हफ्ते का व्यू बना के क्या करने वाले हम लोग। हम लोग ट्रेड करना चाहिए। एक ट्रेडर को और एक इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहिए। अपना व्यू बनाने के लिए बाजार में ये सब बातें डिस्कशन करने के लिए तो अच्छी है। अभी ऋषि भाई आए थे बोलने के लिए, वो बोलते हैं, और बाकी जितनी भी कुछ बाकी स्पीकर्स और भी आते हैं बोलने के लिए कि अभी निफ्टी 16,000 हो जाएगी, निफ्टी 12,000 हो जाएगी, निफ्टी 20,000 हो जाएगी। अरे 20,000 हो जाएगी तो बाबा तुम कितने पैसे बनाने वाले हो, या 12,000 हो जाएगी तो आप कितने पैसे बनाने वाले हो। आप इस पे फोकस करो। व्यू के लिए बहस करने के लिए मुद्दा बहुत अच्छा है, पैसा बनाने के लिए इससे पैसा नहीं बनेगा। ये भी मैं गारंटी से बोलता हूँ। पैसा बनाने के लिए आपके पास अपना ट्रेड प्लान खुद का होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। जी अमित भाई, जी विशाल भाई। आपने जो बात बोली 100 पते की बात बोली आपने। यहाँ पे लोगों को अपना व्यू सही करना है। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स राइट इररिस्पेक्टिव। वो लेट्स से आई नो अ ट्रेडर जो बोले कि मैंने तो यार अपोलो टायर 190 रुपए से तेजी का व्यू बोला था, 280 हो गया। तो मैंने पूछा कितना पैसा कमाया। तो बस व्यू था बस वो। नहीं, वो 190 से 210 रुपए के बीच में मैंने 5-6 बार जॉबिंग किया, 6-7 रुपया कमाया, बस। उसके बाद में इतना भाग गया तो मैंने एंटर ही नहीं किया। और लेकिन पूरे गांव में जाके बवाल करना है कि मेरा व्यू था, और देखो 200 190 वाला 280 हो गया। तो द पॉइंट ओवर हियर इज एवरीवन हैज अ व्यू। कल किरीट भाई ने भी बोला काम वाली बाई का भी व्यू होता है, और व्यू सही होगा या गलत होगा इसके द प्रोबेबिलिटी इज 50% ओनली। So I mean, everyone on this earth has a view. It is a yes or a no, or positive or a negative. आपका व्यू अगर सही जा रहा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर, that is more important than anything else. I mean, उसके ऊपर एक और चीज है, आपके व्यू से आप कितना पैसा लॉस कर रहे हो वो आपने कैलकुलेट कर लिया कि भैया ये मेरा लॉस है, मैं लॉस कैलकुलेट कर दिया। मुझे जितने लोगों ने ट्रोल किया ना कि सर आपका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। विशाल तुझे पता है, मैं पहले बोलता हूँ, ये पब्लिक फोरम में पता है भैया, पहले 15 मिनट वेट करता हूँ। तुझे पता है, चंदन को पता है, सबको पता है, मैं पहले 15 मिनट वेट करता हूँ। सर आपका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये हो गया, एसजीएक्स में हो गया। मैं हाँ भाई हो जाएगा ना, मैं अपना ट्रिगर कर दूंगा, तुझे क्यों टेंशन लेने का। सो व्यू अपनी जगह है भैया। विशाल अपना पैसा लगाता है, चंदन अपना पैसा लगाता है, हर्ष अपना पैसा लगाता है, सर्वेंद्र सर अपना पैसा लगाते हैं। हम अपना पैसा लगा के नहीं ये काम करते हैं। तब ये जो जो स्पेस भी कैरी करते हैं ना, स्पेस में आके बोलने के लिए जो गट चाहिए होते, जो बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। हम स्क्रीनशॉट्स नहीं डालते, हम पहले बात करते कि भैया ये पॉसिबिलिटीज है, मार्केट में ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी। I just share an experience. अमित, ये टॉपिक जो चल रहा है
आई थिंक आई हैव टू जंप इन हियर एंड ऐड अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो ये जो ट्रेड प्लान जो चैंडी जी आप जो ट्रेड प्लान की बात कर रहे हैं, तो आप ये जो ट्रेड प्लान बनाते हैं, तो जब आपने किसी भी नंबर को आपने इंपॉर्टेंस दे दी, आपने 17 to 20 बोला ये मेरा लेवल है, आपने उसको जब नंबर को इंपॉर्टेंस दे दी कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं करूंगा, तो भाई साहब वो व्यू नहीं है तो और क्या है? वो व्यू ही वो है. ट्रेड प्लान है, व्यू होता कि मैं आप ऐसे आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए. आपका जी ट्रेड प्लान ही बताइए आपका व्यू है. आपका ट्रेड प्लान ही आपका व्यू है. ओके, सो डोंट सर. कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ. थोड़ा फर्क होता है. व्यू 1000 2000 5000 पॉइंट की बात होती है. ट्रेड प्लान में मेरे को 200-300 दिखता है, मैं उतना ही कमा सकता हूँ. एक सेकंड में सबको म्यूट किया. सर्वेंद्र सर थोड़ा प्यार से भी बात करेंगे ना, बिना अग्रेसिव हुए तो भी वही बात करोगे आप. थोड़ा हम प्यार से ही बात करते हैं ना, हम सब भक्त है सबके. थोड़ा प्यार से पूछेंगे, सब जवाब देंगे. सर थोड़ा सा टोन, सर थोड़ा सा टोन. अनम्यूटिंग एवरीवन. सर्वेंद्र सर प्लीज गो अहेड. हाँ सर्वेंद्र जी प्लीज. सर्वेंद्र भाई चलिए जाने सर्वेंद्र जी चले गए. नहीं, देखो मैं थोड़ा सा जी आई एम देयर जी जी. देखिए थोड़ा तो मैं इसके पहले भी स्पेसेस में डिस्क्लेमर दे चुका हूँ. थोड़ी तो मेरी नॉर्मल टोन जो है उसकी ट्यूनिंग ऊपर से ही थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट डोंट स्पीक ओवर मी, लेट मी कंप्लीट. मैं भी किसी लॉजिक से आ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपका ट्रेड प्लान क्या है, उसी के ऊपर मैं समझा रहा हूँ. एनीबॉडीज ट्रेड प्लान फॉर वट एवर टाइम फ्रेम इट इज, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 13 minutes, 3 months और 3 years, एवरीथिंग इज अ व्यू. क्योंकि आपने किसी लेवल को इंपॉर्टेंस दिया, वहां से आपने अगर 2 मिनट का भी ट्रेड किया तो 2 मिनट का आपका व्यू था. सो डोंट मिसगाइड पीपल बाय सेइंग कि ट्रेड प्लान है और कोई व्यू नहीं है. बिना व्यू के कोई ट्रेडिंग नहीं होती है. लेट्स बी वेरी क्लियर. ओके, सो बात ये है कि हाँ, अब ये डिबेट कर सकते हैं कि आपका व्यू ही 5 मिनट का है या 2 घंटे का है, फाइन. बट आपने कुछ बायस चेंज किया. इफ अ लेवल कम्स, यू हैव गिवन इट इंपॉर्टेंस एंड यू हैव चेंज्ड अ बायस. द मोमेंट यू चेंज योर बायस, देयर इज एन अंडरलाइंग व्यू. तो प्लीज डोंट से कि ट्रेड प्लान इज नॉट अ व्यू. ट्रेड प्लान तो व्यू से ही बनेगा ना. इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी, लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो ना. द मोमेंट यू पुट अ ट्रेड आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, यू हैव फॉर्म्ड अ व्यू बॉस. अगर आपने व्यू बनाया नहीं तो आप तो बाहर बैठे तो. सर्वेंद्र जी इसकी बात के लिए एक बताता हूँ आपको. व्यू अगर मेरे दिमाग में पहले से कोई व्यू बना रहेगा ना, तो मैं ट्रेड प्लान बना ही नहीं पाऊंगा अपना. मैं वही समझा रहा था. आपने व्यू पहले से बनाया नहीं. आपने 17,220 का लेवल निकाला कि नहीं निकाला? पहले से निकाला था कि बाद में निकाला आपने? नहीं, ये देखो ये ट्रेड व्यू जी आंसर माय क्वेश्चन. नहीं 17,020 और 17,800 के तो बीच में तो मैं बैठा ही हूँ बहुत देर से. allow me to answer जी जी allow me to answer. हाँ विशाल भाई. सर्वेंद्र भाई अब मैं आपको बताता हूँ चंदन भाई कहना क्या चाह रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं. वो दोनों में देयर इज थिन लाइन ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजन है. चंदन का एक ट्रेड प्लान है. आई हैव बीन ट्रेडिंग विद चंदन. हम लोग आई थिंक 10 साल से हम लोग साथ में ट्रेड करते हैं. तो आई नो एक वी ऑल हैव अ ग्रुप. मैं एक सेकंड विशाल रुक. मैं, विशाल, चंदन, सावियो, हम सब एक पर्सनल ग्रुप में हैं. हम एक दूसरे को गाली देते. अमित सर्वेंद्र भाई एक सेकंड सुनो ना. एक सेकंड अमित लेट्स लीव इट यार. इट्स नॉट रेलेवेंट टू. इट्स नॉट रेलेवेंट. अमित मेरे को कंटिन्यू करने दे प्लीज. तो सर्वेंद्र भाई चंदन का क्या कहना है कि आज बाजार के अंदर 4 लेवल है. लेट्स से समवन इज ट्रेडिंग निफ्टी. आई हैव अ लेवल 17,220, 17,440, 17,000 व्हाटएवर. देयर आर 3-4 हमने पाइवट बना लिए या सब लेवल्स बना लिए. अब वो लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो तेजी करनी है, वो लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो मंदी करनी है. वो लेवल पे हिट करके 15 मिनट वेट करेंगे. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेड प्लान. अब रही बात व्यू की. व्यू किसी का ये नहीं है कोई 5 मिनट का व्यू लेके बाजार. मैंने आपने कंप्लीट नहीं करने दिया. मैं वही बोल रहा था. मैं आपको वही कि द मोमेंट यू पुट अ ट्रेड प्लान, जो आपने लेवल अगर 2 मिनट पहले डिसाइड कर लिया कि ये मेरा लेवल है, इसके ऊपर मैं तेजी करूंगा, द मोमेंट यू शिफ्ट योर बायस, इट्स अ व्यू. yes, your view could be 5 minutes, some view could be 50 minutes, some view could be 50 months and some view could be 50 years. but मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्रेड प्लान is nothing but a view. जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जैसे ही आप लॉन्ग शॉट गए, आपने बायस चेंज किया, आपका व्यू आ गया.
सो ऐसा मत स्टेटमेंट मत दीजिए यूनिवर्सल कि व्यू के बिना ट्रेडिंग नहीं होती है। हाँ, ये बोलिए मेरा व्यू 5 मिनट का है, मेरा व्यू 15 मिनट का है, मेरा सरेंद्र जी, व्यू 5 मिनट का 15 मिनट का नहीं होता। अगर मेरा व्यू मंदी का है ना तो मैं तेजी नहीं कर पाऊंगा, और मेरा व्यू अगर मंदी तेजी करेगा मैं मंदी नहीं कर पाऊंगा। व्यू और ट्रेड प्लान में ये फर्क होता है। व्यू 5 मिनट के लिए, व्यू 2 मिनट के लिए नहीं बना सकते हम लोग। एक सेकंड शांत होगा भाई, एक सेकंड शांत होगा। अमित भाई, मैं कभी देखा है आपने मेरे को गुस्सा होते हुए? एक सेकंड शांत होगा सर। आपका भी तो ट्रेड प्लान है ना कि निफ्टी 16,200 जाएगा, 15,200 जाएगा, वो आपका भी व्यू है ना। हमारा व्यू होता है, हम इंटरडे ट्रेडर्स हैं, हम ऑप्शंस खेलते हैं, हम ऑप्शंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में खेलते हैं सर। हमारा वो व्यू है तो उसको भी रिस्पेक्ट करो ना सर। हमने कब बोला कि अब आपको व्यू को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? अमित जी एक मिनट, मैंने कहीं नहीं बोला कि आपका व्यू नहीं है, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं वही बोल तो कोई ट्रेड लेता भी नहीं है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वही मैं एग्जैक्टली बिना व्यू के कोई ट्रेड होता ही नहीं है, चाहे वो चलिए एक काम करते हैं, सर्वेंद्र भाई की बात मान लेते हैं, व्यू के बिना ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड प्लान इज आल्सो अ व्यू। चलिए चंदन, बस चलिए एक्सेप्टेड। और बोलिए। हाँ, उसके अलावा क्या विशाल, तुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे आज लगा, मैंने पब्लिक फोरम पे मेरा खुला डिस्क्लोजर था, हमें एक सेकंड पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, पीछे शोर बहुत हो रहा है अमित, तो आई थिंक लेट्स मूव टू केतन भाई। केतन इज No, I have to still share my view. Let me just complete. Yeah, I missed your सर्विंदर। 2 minutes क्विकली, 2 minutes आप, क्योंकि अपन 12:30 तो हो ही गए हैं, 12:45, तो 1 बजे का हार्ड स्टॉप रखेंगे स्पेसिफिक। या तो थॉट वही है जो कल था कि आपने एक ट्रेड लिया और आपने व्हाटएवर हमने एक व्यू बनाया, हमारा व्यू थोड़ा महीने भर का होता है और हम बोल ही रहे कि महीने भर 40 दिन का हमने व्यू बनाया। कोई और भी सज्जन आए थे जिन्होंने उस व्यू को सुना, तो हम सो जस्ट रिपीटिंग दैट व्यू कि हमने 17,800 18,000 के आसपास ही, 17,800 के आसपास ही हमने वो व्यू बना लिया था कि 15,800 16,000 आ रहा है। हम उसी ट्रेड को कैरी कर रहे हैं और अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। सो आवर व्यू इज अ 40-day व्यू एंड वी आर ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, एंड राइट नाउ वी आर समवेयर एट 17,356 एज अ स्टॉप लॉस। एंड अभी भी व्यू यही है कि भाई डिसाइसिवली बहुत ज्यादा 17,350 17,500 के ऊपर जा नहीं पाएगा और 15,800 16,000 पहले आएगा। बस इतना ही थॉट है। उसी थॉट को ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। उसमें बाउंस भी खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो, बट ओवरऑल अब जो सेटअप्स लग रहे हैं उसमें थॉट यही है कि अपसाइड्स विल बी कैप अराउंड 17,350 17,500। उसके ऊपर गया तो हम भी, हमारे भी लेवल्स आ जाएंगे और हमें भी व्यू चेंज करना पड़ेगा या ट्रेड प्लान हमारा चेंज हो जाएगा। बट फिलहाल ट्रेड प्लान यही है या व्यू यही है कि वी आर स्लिपिंग बैक टुवर्ड्स 15,800 16,000। सिमिलर कंपेरेबल लेवल्स अगर मैं बैंक निफ्टी के निकालता हूं तो 34,500 35,000 के आते हैं, और बैंक निफ्टी के केस में भी लगता है कि 39,500 40,000 के ऊपर जाके टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जिसको अपने इसके बीच सर्विंदर भाई, यहाँ पे नीचे का व्यू तो आपने दे दिया, मेरा आपसे एक सवाल है कि ऊपर का क्या स्टॉप लॉस होगा? सिंपल। अभी तो मैंने दे दिया ना, स्टॉप लॉस भी तो दे दिया। 17,350 टू 17,500 इज माय स्टॉप लॉस रेंज। अभी तो फिलहाल 17,350 से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बट हमारा ट्रेड प्लान चेंज होगा 17,500 के ऊपर। मतलब 17,350 से आप शॉर्ट्स काटना चालू कर देंगे और 17,500 तक शॉर्ट्स काटते रहेंगे, देन यू विल वेट। या तो ट्रेड प्लान विल चेंज, द ट्रेड प्लान और द व्यू विल चेंज अबव 17,500, बट वी विल प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट्स एट 17,350। And Sarvinder ji, my one question to you is, normally are you more of an intraday trader or you are a positional or a swing trader? I told you just now, I think you are not listening. I said out. I probably missed out. Yeah, my bad. My see, that is what I am saying. सबके लिए एक सिंपल सी बात, जब आपको ट्रेड करना है तो आपको अपना पहले लॉन्ग टर्म डिसाइड करना है। वो लॉन्ग टर्म आपका एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, या जो भी हो सकता है। जैसे ही आपका लॉन्ग टर्म डिसाइड हो गया, आपको मालूम चल जाएगा कि आपका मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होना चाहिए। सो फॉर मी माय लॉन्ग टर्म इज 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स प्लस। तो मेरा मीडियम टर्म ऑटोमेटिकली 3-6 महीने का हो जाता है और मेरा शॉर्ट टर्म होता है 30 दिन का, 30 वर्किंग डेज, 30 टू 40 वर्किंग डेज। तो मेरे शॉर्ट टर्म बायस में, मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान में निफ्टी का 15,800 का टारगेट है, और मुझे लगता है कि वहां हम धीमे धीमे फिसलेंगे, और हमारे तो ट्रेड्स प्रॉफिट में ही हैं, हम उनको कैरी कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। सेम विद बैंक निफ्टी, जहां हमें लगता है 34,500 35,000 आएगा, और आप 39,500 40,000 के आसपास, उसके ऊपर ये बाजार बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी भी निकल नहीं पाएगा। सो दैट्स द ब्रीफ, एंड लुकिंग एट डाइवर्जेंसेस एंड एवरीथिंग ग्लोबली, सारे मार्केट्स 52 वीक न्यू लोज बना रहे हैं, तो 90% ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग डाउन, सो वी डोंट हैव द पावर टू पुल बैक 90%. We will have to gradually go down with the 90%. So that was the thought which I've been sharing consistently. और उसी ट्रेड प्लान और उसी ट्रेड कर, अभी तक तो सौदा काटने की जरूरत आई नहीं है, जब आएगी काट लेंगे।
ये भाई जरूरत ना है प्रॉफिट में सौदा काटने की जरूरत वो है। और तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आर ऑल बिलो कॉस्ट एंड वी आर ऑलरेडी बिलो कॉस्ट ऑन ऑल आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। ये एक चीज ऐड करता हूँ उसमें, जब 52 लोग पड़ता है ना, जब 52 लोग पड़ता है, 52 वीक लोस पड़ता है, जब सब ओवरसोल्ड हो जाते, जब सब ओवरसोल्ड की बात करने आ जाते पब्लिक फोरम में, अनिल सिंघवी सर कल बोल के गए थे, वहीं से सब कुछ रिवर्स होता है। पब्लिक पकड़ के रह जाएगी कि हमें 15 पे पकड़ना है, 16 पे पकड़ना है, 17 पे पकड़ना है, 18 पे पकड़ना है, 19 पे पकड़ना है। वो पब्लिक का खुद का परसेप्शन रहेगा। आई कैन नॉट डिनाई कि भैया किसको क्या सोचना है, वो आपकी सोच है, जिसको जो सोचना है सोचे। हमें किसी का सोचना बदलना है, हम जो करते हैं हम वही डिस्कस करते हैं कि भैया जब सबने सोच लिया कि ये इस मूविंग एवरेज से निकल गया। एक बात बताओ, 130 ईयर का 130 ईयर्स तब जो उनका हिस्ट्री है, तो मतलब जिसने 52 लो पे बेचा उसको तो कभी खरीदनी नहीं चाहिए वापस मार्केट। मतलब वहां से मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सारे है ना मिसकंसेप्शंस जो बेचे जाते हैं या कोई सिखाता है, सबसे बड़े मूर्ख कंसेप्ट है, वहीं पे सबसे बड़ा पैसा बनता है। एक चीज याद रख के जाना जिंदगी में कि भैया सबको बेचना है, सबको लग रहा है कि यहाँ से बाजार और खराब हो जाएगा। कोविड का टाइम था 7500 लेवल्स, probably विशाल was there with me, किरीट सर was there with me, and हमारा भी स्टॉप लॉस बड़े टारगेट पे, मतलब हमने भी 1500 पॉइंट खोए, बट हमने अपना व्यू बदल दिया कि भैया हम भी गलत थे 1500 पॉइंट के लिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 7500 का 1500 पॉइंट पकड़ना, कि हमने लॉस भी खाया उस चीज का, बट समझ में आने का भैया गलत है, अपन व्यू बदल दिया। तो वो मत पकड़ के चलने के 52 एक 50 लो मारा, 200 डेज का नीचे लो मारा, तो इस हिसाब से तो किसी को जिंदगी में खरीदना नहीं चाहिए। तो ऑल दिस शिट्स डोंट टेक ऑल दिस कंसेप्ट इन योर लाइफ। इसके हिसाब से तो जिंदगी में कोई इंसान पैसा इक्विटी में बनाएगा नहीं। मतलब इक्विटी बाजार सबसे खराब होता है, तो कभी इक्विटी में पैसा मत डालो, आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करो, आप सिर्फ कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो, आप सिर्फ XYZ चीजें करो। ये सारे शिट कंसेप्ट है। जब सबसे खराब है, जब एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट गो एंड बाय दैट टाइम। ये नहीं बोल रहा कि 100 रुपए है, नहीं सरवंद सर, अभी आप बोल रहे There is the blood. You tell me, show the blood. There is no blood in the street. Everyone. Yes, exactly. Why? वही मैं बोल रहा था। नहीं, सबको बेचना है, सब डाउनलोड देख रहे हैं, आप भी डाउनलोड देख रहे हो, विशाल डाउनलोड देख रहा है, मैं देख रहा हूँ। 52 को मार दिया, विशाल तो trade कर रहा है नहीं एक सेकंड, 200 डेज एवरेज की अच्छा कितनी बार गया, और उसके बाद वापस उसने क्या किया, वो आगे का स्टोरी कोई नहीं बताता, सब ये बताता है यहाँ से नीचे जाके यहाँ से। मैं कल शरद सर में बात कर रहा था ना, इसी स्पेस में बात कर रहा था जो मैं हैंडल कर रहा था। मेरा कोई देखो, शरद सर तो मेरे भी गुरु जैसे हैं, एब्सोल्युटली वो सिखाते हैं तो हम भी सीखते हैं उनसे, उनका इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगेंस्ट कोई बोल दे तो हम गाली दे देते। तो रिस्पेक्ट ऑफ दैट फैक्ट, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कल एक आई थी कोई यूएस वाली, उसको भी मैंने टोक दिया था, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। सबसे ज्यादा जहाँ थोड़ी देर तो सर्विंदर भाई, ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये बोलूंगा, व्यू जो है ना इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, और क्या कहते हैं, प्लान जो है वो कंक्रीट होते हैं। तो विद दिस, ये आप क्यों अज्यूम कर रहे हो कि हम बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हैं या बिना प्लान के? नहीं हम कुछ हमारे पास भी है ना भाई, हमारे पास भी प्लान। कुछ नहीं अज्यूम कर रहे। जस्ट 2 मिनट्स। अरे यार बाकी चलिए बोलिए। सुनिए, अभी जब बात ये आई ना, कोविड लो की भी आ गई बात, केस स्टडीज है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे को बाकी लोग का नहीं मालूम, बट मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन बाइंग व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। ओके, तो अब मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं कोई बड़ा ही नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ इसका प्राइम एग्जांपल मैं हूँ। मैंने 2004 के क्रैश में अपना पहला घर खरीदा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कर्जा लेके घर खरीदा। मैंने 2000 के गोल्ड वाले क्रैश में, जब चाइना ने रेट बढ़ाए, वहां मैंने शादी की। 2008 के क्रैश में मैंने, क्रैश के खत्म होते ही मार्च में मैंने अपना 2000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल ऑफिस लिया, पैनिक में, ब्लड ऑन द स्ट्रीट। 2011 के बॉटम में मैंने नौकरी छोड़ी, कंसल्टेंट बना। तो मैं तो ब्लड ऑन द स्ट्रीट का लाइव एग्जांपल हूँ। कभी कोई बैठेगा मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा कि भाई ब्लड ऑन द स्ट्रीट का लाइव एग्जांपल। सर्विंदर, यू आर अ बुलिश ऑन मार्केट ओनली। सॉरी,
आप बुलिश ही हो ना मार्केट के लिए, ये मैं आप बोल रहे हो। लॉन्ग रन में तो मैं बहुत बुलिश हूँ। फिलहाल ब्लड तो आने दो स्ट्रीट पे, हम सबसे पहले आएंगे चिल्ला के। कोविड के लोग का अब चलिए, कोविड के मैं कभी करता नहीं हूँ, कोविड के लोग का वीडियो भी ट्वीट कर देता हूँ। 75-7800 में क्या बोला था सुन अरे लीजिएगा। अरे सर्विंदर भाई क्या बोला था, वो घटना घट गई, खत्म हो हाँ तो गई। भाई नहीं अभी चलिए, केस स्टडी आई तो let's go to केतन भाई is waiting for quite some time. प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। क्योंकि क्या अपने पास समय कम है, तो W I'll come to you. I'll again finish in 10 seconds if you allow. Okay, please. So like Sarvinder sir said that 2004 crash, 2006, whatever the crashes have been, that has been his long-term view, because it's very logical, and this is there in every behavioral finance book, that where you make money, you form a view over there. So even earlier, he has said that he has a bearish view, and I'm telling this not as someone who is. I'm telling this as an onlooker, like a neutral person. But when Chandy sir, so he has been following that bearish view since a long time. But if you ask Chandy sir, he is neutral. Tomorrow, if his levels change, he will change his views. But Chandy sir, like he has, this has been justified by him himself, that since a long time he has been a bearish guy. All his money has been made in the bearish trades. But Chandy sir is willing to play both sides. So this is the difference between a plan and a view. This is the only thing that I have to add. फाबियो एक चीज ऐड करूं, if VN allows me. नहीं I won't allow you अभी 10 सेकंड चेतन को बोलने दे भाई। नहीं, इन सबको है ना मंदी मैंने सिखाया। मैं मंदी मुझे पकड़ में नहीं आएगा तो किसी ने पकड़ में नहीं आएगा। वो 1000 पॉइंट में ना खेलता, मैं निफ्टी बड़ा खेलने वाला। मैं तू अभी रह दे, मैंने बोला तू मत शुरू कर दे भाई, मैं तेरे को अभी म्यूट कर दूंगा, नहीं तो वो रिमूव कर देना बस। चलो चलिए क्विकली लास्ट 10-15 मिनट क्वेश्चन ले लो, सबके क्वेश्चन ले लो फटाफट। या जय हिंद टू ऑल ऑन द स्पेस। अपना स्टॉक मार्केट फिर इकोनॉमी और फिर वापस आया, तो मैं एकदम छोटा बहुत कम टाइम लूंगा और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मार्केट में सब समझ जाएंगे क्या बात कर रहा हूँ। देखो कैसा है, लेवल्स है ना, लेवल्स तेजी बोलो मंदी बोलो सब है ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का पूरा गेम है, इंडेक्स मैनेज होता है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पॉइंटर बोल रहा हूँ, सिर्फ पूरा लिक्विडिटी का गेम है। मंदी, लिक्विडिटी साफ, मंदी आएगी, लिक्विडिटी रहेगी। आप कितना भी खराब डेटा भी रहेगा ना तो भी है ना, आप मार्केट तेजी में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सब पॉकेट्स पूरे भरे हुए हैं। इंडेक्स मैनेज होता है। आज 8 साल तक है ना रिलायंस नहीं चला तो क्या मार्केट नहीं चला? क्या चला ना। तो इंडेक्स मैनेज होता है। तीसरी बात कि जो अभी रेट हाइक की सब हर एक कंट्री रेट हाइक कर रही है। इंडिया पहले से सालों से 1% रेट ब्याज पे है ना काम करने के लिए ना पहले से, यानी 12 महीने का 12% हो गया। तो 12% पे भी है ना जिंदा रहा है, लोन लिया है, घर भी लिया है, दुकान भी लिया है, सब कुछ किया है। तो वी आर यूज्ड टू दैट हायर इंटरेस्ट रेट, जो कि यूरोप यूएस वो लोग यूज्ड टू नहीं है ना, उनके लिए वो सब चीजें नहीं है उनके लिए, तो वो लोग यूज्ड टू नहीं है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। कहीं पे अगर कुछ पूछना हो तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, बट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट का हो गया। दूसरा, इंडेक्स की जब बात करते हैं, इंडेक्स का मेरा 22 साल का अनुभव ये बोलता है करके कि इंडेक्स से ना पैसा, जो ट्रेडर है वो इंडेक्स में, उनको देखना इंडेक्स है। जो ट्रेडर है, जो ट्रेडर नहीं है, जो इन्वेस्टर, उनको इंडेक्स देख के कोई मतलब भी नहीं है। अगर उनको इंडेक्स में ही करना है तो अपॉर्चुनिटी का राह देखो। 25-30% जब भी इंडेक्स गिरता है, जब भी गिरता है, अगर आपका मार्क टू मार्केट भरने का ताकत हो तो डायरेक्ट फ्यूचर उठाओ, नहीं है ताकत तो ETF में जाओ, है ना। आज अभी जब इकोनॉमी की बात हुई थी ना, तो 1-2 पॉइंट इकोनॉमी का बोलता हूं कि आज है ना, जो 60 साल में क्या इतना 75 साल हो गया, तो 75 साल में क्या कोई ब्रिज नहीं बना? क्या कोई स्टेशन नहीं बना? सब बना है ना, नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हुआ है, सब कुछ, इकोनॉमी भी ग्रो हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। बट जो लास्ट 6-7 साल में जो हुआ है और जो गेम प्लान है, जो प्लानिंग चल रही है, वो हिसाब से अगर देखें ना, कि आज पूरी दुनिया बोलती है चाइना +1,
यूरोप +1 की अभी बात कर रहे हैं, तो उस नजरिए से इंडिया का भी एक स्टैंड हुआ है। और जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो बूम मिल रहा है इंडिया में, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली रातों रात कोई चीज नहीं होती है। इट टेक्स टाइम, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल लगते हैं। कोई रातों रात जादू की छड़ी से कुछ नहीं होता है। तो इकोनॉमी एज अ होल, सब लोग है ना, लॉन्ग टर्म में सब तेजी रहता है। वो अनिल सिंह भी बोलता है ना करके कि आदमी इंसान हो या मार्केट, आखिर में जाना तो ऊपर ही है, माना। तो वो अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है, खाली नीचे में कितना क्या है कि कैसा कर सकते हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, इकोनॉमी के ऊपर बात करूं ना, तो कैपेक्स की बात आती है। आज कोई भी कंपनी है ना कैपेक्स करती है ना, तो बहुत सोच समझ कर कैपेक्स करती है। कोई अरे तेजी हो रही है मार्केट में, सब चलो अपन भी एक प्लांट डाल देते हैं करके, तो अपना भी काम है। ऐसा नहीं होता है। जिधर जिसको उसको, अगर उसको मालूम है, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। आई नीडेड टू म्यूट केतन। केतन भाई, कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, ये रात का 1 बज चुका है, ये हम कल भी बात कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बहुत सारे लोग होते हैं, आप आके फंडामेंटल व्यू देना। मुझे पता आप एक्सिस बैंक की बात करते हो, बहुत सारे स्टॉक अच्छी बात करते हो। ये रात के 1 बजे, सॉरी, कल आके बात कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ रहेगा। सॉरी, आपको म्यूट किया। Actually, I would just add on to Amit bhai, Ketan bhai. I mean, nothing. केतन भाई मेरे पर्सनल है यार, उनको मैं हमेशा बुलाता हूँ, मुझे दिख जाते हैं Yes, मैं yes. बुलाता हूँ। So nothing against anyone, given that we have got very limited time left. रात की 1 बज टाइम रही कम बचता है केतन भाई। Friday evening. तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि not taking too much of time. If you can give your views on market or if you have any question, तो आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। मार्केट व्यू भी फटाफट देना है तो 2 लाइन में दे दीजिए, दैट वुड बी रादर बेटर ऑफ, क्योंकि हमारे पास में टाइम कंस्ट्रेंट एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर कर देता हूँ। नीलेश, संडे को आना, नीलेश को मैं संडे को ले लूंगा। आई कैन टॉक टू नीलेश, तो नीलेश को मैं खुद रिमूव कर दूंगा। नीलेश वोंट केयर अबाउट इट। चलिए, so हाँ, we have, yeah, Prachi. Yes, hi Vishal sir, hi Amit sir. Sir, so I have started my journey in F&O since last 1 year, and today when I saw when the RBI policy was being announced, the move which came it was so dangerous. I mean, if you can just tell me that how to identify and keep long view in such a market. अगर कुछ भी नहीं किया होता, even if I could have purchased some calls or some futures, I would have made handsome money. But I was just waiting till 2 p.m. because I was seeing global cues are not right. I was just So sitting Prachi, with one call. यहाँ पे I'll be taking the answer. yeah, Chandan, please go ahead. I think देखिए प्राची जी, अभी एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बोल रहा था, व्हेन यू एंटर द मार्केट विद अ व्यू, ऑलरेडी इफ यू हैव अ व्यू इन द मार्केट, और आप उस व्यू के साथ मार्केट में एंटर करते हैं ना, और मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट अगर ट्रैवल करना चालू करता है, मूव करना चालू करता है, तो आप ट्रेड नहीं ले पाते हैं। इसीलिए जब आप मार्केट में एंटर करना चाहिए ना, तो बी स्पेसिफिक विद योर लेवल्स, हैव अ ट्रेड प्लान एंड जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रेड प्लान लाइक ए रोबो, लाइक ए मशीन। इमोशंस को साइड में रख दीजिए। एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि ये भाव आएगा तो मेरे को लॉन्ग जाना है, ये भाव आएगा तो मेरे को शॉर्ट जाना है। इसके अलावा बाजार में दुनिया में क्या हो रहा है, टीवी क्या चल रहा है, लोग रात को क्या क्या बोल के गए थे, सब कुछ भूल जाओ। एक अगर मार्केट से पैसा बनाना है ना, अपना एक ट्रेड प्लान बनाओ। ये ट्रेड प्लान के साथ में कुछ ना कुछ टेक्निकल्स, कुछ लेवल्स, कुछ चीजें के हिसाब से उसको बनाइए और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करिए। ट्रस्ट मी, पैसा आएगा, इससे पैसा आता है, मुझे आ रहा है और जितने मेरे फेलो ट्रेडर्स हैं सबको इसी से पैसा आता है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। Okay. also, yeah, Prachi, you want to add something? Sir, but one thing is for sure, I have seen event, if new traders are away on the days of event, it's much better. Absolutely. इसमें वन ठीक है, इट शुड बी, यू कैन सिट असाइड एंड स्टे अवे, बट आप देखो पिछले 2 दिन का हाई था 17,020, ऑलमोस्ट सेम। आज वो उस हाई को निकाला, 5 मिनट रुक गया, तो वो जब हाई निकाला 5 मिनट रुका, तो उस हाई का स्टॉप लॉस डाल के आपको ट्रेड लेना चाहिए था। सिंपल ट्रेडिंग रूल होता है ये।
अगर मार्केट 2 दिन का 3 दिन का जो रिवर्सल पॉइंट था, जो रिजेक्शन पॉइंट था, उसको निकाल के 5 मिनट रुक रहा है, तो बस उसी रिजेक्शन पॉइंट का आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालते। एक बार निफ्टी 17,020 के ऊपर निकल के रुका ना, उसके बाद 17,000 का बहुत तोड़ा नहीं उसने, फिर सीधा राइट 17,200 पे रुका, एक बार भी रिवर्सल नहीं आया था। फिर एक राइट पॉइंट आया 17,200 का जहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए था। राइट यहाँ पे चंदन की बात को just to add on to Chandan, last 6 or 7 trading days से markets were not able to cross and close above previous days high. So first thing what happened today was previous day I think Nifty spot was 17,026 का एक spot level था, वो क्रॉस किया, वो क्रॉस करते ही बाजार जो है वापस से पलटा नहीं। उसके बाद में you go and look at daily candles of last Tuesday and probably Monday, where Nifty made a high of 17,192 and 196 probably. And today again, I think Nifty spot. I'm talking about spot Nifty. Spot Nifty made high near about these levels only. तो क्या है कि ये लेवल पे आने के बाद में यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन हुआ. That was the reason why markets actually post that rejection corrected almost 100, give up almost 100-120 points from the day's high. So आपको ये pointers को थोड़ा देखना पड़ेगा. And given that you mentioned that you are a new trader in F&O for about you have been into the market futures and options for about a year. So I yeah. So I think when in doubt, first thing is you should always be out of the markets. When in doubt, get out. And when you are not comfortable and you still want to have your skin in the game, reduce your quantity. And if you are not able to, if you are trading futures and you still have a doubt and Vishal, uncertainty, trade can by. I add something? बोलिए सर. आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट्स देखते हो, बहुत अच्छी चीज है, इसने 5 लाख कमा लिया, इसने 50 लाख कमा लिया, इसने 5 करोड़ रुपया कमा लिया। उनको सिंपल पूछो कि भैया हमें भी लाइव मार्केट में ट्रेड दे देते ना, लाइव मार्केट में ट्रेड दे देते। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो उनसे कि अगर आपको इतना बड़ा है, आप 5 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, मेरा सिंपल क्वेश्चन सबसे एक ही होता है, भैया इतना पैसा कमाते हो, लाइव मार्केट में ट्रेड दो। उनकी अगर औकात हो जाए, चंदन रुक जा, 1 सेकंड रुक जा, हाथ नीचे कर, पता है हम करते हैं। सिंपल पूछो कि लाइव मार्केट में ट्रेड दो, उस पे गट्स रख के बैठो। मैं तो वो लाइव मार्केट में देता हूँ, वीएन लाइव मार्केट में देता है कि भैया ये मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, हमारा वो व्यू है, और उस व्यू में हम 100 में से पकड़ लो 60 से 65% टाइम हम रॉन्ग जाएंगे, पर जब हम 35% राइट जाते हैं तब ये किसी को नहीं पकड़ना होता है। वो सिर्फ आप स्क्रीनशॉट से खुश हो जाते हो कि उसने 2 करोड़ रुपया कमा लिया। तो भैया जो 2 करोड़ रुपया दिन का कमाएगा, आपको लगता है वो ट्विटर पे आके बैठेगा, टाइम पास करेगा? ये है ना, ये है ना। अमित आज का एग्जांपल ले लेना यार। एक सेकंड, आज टेलीग्राम चैनल में दिया था 16,950 के आसपास में बाइंग दिया था, 17,200 टारगेट के साथ। तो हम तो क्या ट्रेड लेते भी हैं और ट्रेड लेने के साथ में बाइंग भी दे देते हैं, वेरी सिंपल। हम लोग मार्केट में देते हैं, पर मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हमारा ट्रेड फॉलो मत करो, हमसे सीखने जाओ। आपको लगता है कुछ लोग डालते हैं कि उसका बैलेंस शीट देखो, इनकम टैक्स का रिटर्न देखो। मेरे इनकम टैक्स रिटर्न देख के आप क्या कमा लोगे? मेरे घर का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रख दूंगा, विशाल में प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रख देगा, भूल जाओ मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न। हमारे पास इतना है ना, इतना है, कितने डॉक्यूमेंट रखेंगे, कितने डॉक्यूमेंट लाके रखे? तो ये सब है ना, बेकार की चीजें होती है जिंदगी में। आपको लाइव मार्केट में तो उसे सीख के जाओ ना। विशाल लाइव मार्केट में करता है, हर्ष लाइव मार्केट में करता है, मुझे ये लग रहा है, चंदन कुछ करता है, पर्सनल करता है। एक चीज समझ लो, आप मैंने तो अमित भाई 2 बार लाइव स्पेस किया ट्विटर पे, लाइव ट्वीट शेयर किया। सुन ना, एक सेकंड चुप हो जा भाई। चंदन ने 800 रुपए पे एक्सिस बैंक ठोकने को बोला था, आई थिंक मंडे का बात है। एक सेकंड, फ्राइडे। एक सेकंड रुक जा। आपको लगता है स्क्रीनशॉट डाल दिया, उसने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, तो भाई पहले हमें बता देना, हमें 2 करोड़ नहीं कमाने का, हम 2,000 रुपए भी कमाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। वो सारे स्क्रीनशॉट आते हैं 3:30 के बाद।
उनको बोलो ना कि भैया हमें क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं ट्रेड करने का। मेरा ट्रेड लाइव होता है, विशाल का ट्रेड लाइव होता है, हम फ्री में डालते हैं, उसकी तो वैल्यू नहीं। कोई स्क्रीनशॉट डाल देगा मैंने 2 करोड़ रुपए कमाया, पूरी पब्लिक घुस के 50,000 कमाया, लाख कमाया, 2 लाख। चलिए जाने दीजिए नहीं अमित वो भाई, सब है जाने ना, दीजिए लोग। सबसे बड़ा आपकी मूर्खता है जिंदगी में, आप सीख के आओ। अगर आपको सीखना है, मैं सिंपल चीज बोलता हूँ, जब तक आप नहीं सीखोगे ये सब देख के ना आप फंसोगे। ये पब्लिक फोरम में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड स्पीचेस शायद नहीं है, मैं रिकॉर्डेड स्पीच में ये चीज बोल दूंगा। अमित रिकॉर्डेड है, हाँ, स्पेसेस तो आर मैं रिकॉर्डेड। पब्लिक फोरम में मैं वीएन किरीट सर चंदन जो बैठे हैं ना, हर्ष को पकड़ लेऊंगा। हर्ष शांत हो जा भाई, तू लेट आया, तू स्पेस सेंड करने का टाइम आ गया। हम लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे कि भैया पैसा कैसा है, ठीक है। वो सब बातें नहीं करने की होती है कि मैंने 2 करोड़ रुपए, भाई 2 करोड़ कमाया तो कहाँ बैठा है। वो 2 करोड़ वालों को पूछ ले, भाई तू कौन से घर में रहता है, अपने घर की तो फोटो डाल, वो दिखाएगा मैं हॉलीडे मनाएगा। हॉलीडे क्यों, पूछ लो ना भैया तेरा घर का है, किसी का घर नहीं है। अमित आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट, चलिए आई मीन वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक, तो पीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। सर बस एक सवाल था, कैन आई जस्ट कंप्लीट? या प्राची। So Vishal sir, one inference I made out of today's experience, whenever trades never come easy in the market. So if we are having a view that things are not right, we should always be contrarian. Am I going correct? Come again, sorry I missed the second part. We should always have contrarian views in the market in days of event. I would say it depends upon what the event is, how the broader consensus of the market is, normally where the crowd wants to go. If then you should take a contrarian view, and you should take a informed view, I would say. And if you know how to manage your risk, then it doesn't matter whether you are taking a contrarian view or a view with regards to the event, which could be the obvious view. Obviously doesn't happen in the markets most of the time, एक सेकंड, but एक सेकंड, अमित यार बोलने तो दे भाई। नहीं वो प्राची के पास मेरा नंबर है, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया था, इसके लिए वो क्वेश्चन पूछ रही है। प्राची यू आर दैट पर्सन ओनली ना, वो Yes sir. हाँ ठीक है। मैं वीकडेज में किसी से बात नहीं करता, विशाल का भी फोन आता, मैं उसका भी फोन नहीं उठाता वीकेंड्स में। Okay sir, I'll call you tomorrow then. No, you don't need to call me, I'll call you, we'll have a chat, don't worry about that. Okay sir, ठीक है. वो विशाल Thank you so much. सबके क्वेश्चन ले, सबका जवाब देंगे, क्या टेंशन लेता है। या पीके गुप्ता जी, थैंक्स प्राची। पीके गुप्ता। Yeah, thanks, Vishal sir and Amit for allowing me to talk. I just have a couple of requests. Before that, I just wanted to answer Prachi's question. I saw her timeline on the Twitter and she has mentioned that how to predict the momentum. भैया I would suggest that it would be only markets. हाँ सर, बोलो। कौन बोल रहा है अभी? पीके गुप्ता सर। अच्छा सर, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अमित। हाँ कल मैं सर मैं दो रिक्वेस्ट बोल देता हूँ कि आप नेक्स्ट स्पेसेस में आप लोग साइकोलॉजी के बारे में भी कुछ ऐड कर दो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर। एब्सोल्युटली सर, सर आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, विशाल, चंदन, एवरीवन ऑफ आवर स्पेस पीपल विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट सर, नो वरीज अबाउट दैट सर। अभी थैंक यू। और एक लाइन और बोलूंगा सर, एंड देन आई विल फिनिश इट अप। Just wanted to tell, I see that a lot of new traders are also there. I've been in this industry for almost 5 years. 3 साल हाथ जलाए मैंने, 3 बार अकाउंट्स ब्लो अप किए हैं, so I know that how trading psychology is important. बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े हैं, यहाँ से जंप करके वहाँ पे गया हूँ, nothing helped out until unless I figured out कि एक 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज पे भी आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, एक RSI के बेस पे भी पैसे बना सकते हो, सिर्फ प्राइस एक्शन पे भी पैसे बना सकते हो सर। बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी से सर वापस आप ज्ञान देने आ गए। ज्ञान तो मेरे पास इतना है, विशाल के पास इतना है, चंद्र के पास इतना है। नहीं सर, आप लोगों के पास ज्यादा ज्ञान है। एक और रिक्वेस्ट है सर, अगर आप कुछ बोलना था इसके लिए हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी सर। आई नीड
stop you? नहीं सर चलेगा, मैं खत्म कर देता हूँ सर, एक लास्ट लाइन बोल के। आप अमित सर, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी गेट टुगेदर फ्रॉम, जो जैसे मैं आपके स्पेसेस को रेगुलर ज्वाइन करता हूँ, अगर कभी आप मुंबई में या किसी दिल्ली में या बैंगलोर में कभी गेट टुगेदर करोगे तो डू इन्फॉर्म, सो दैट people who follow you like me, we can come and meet you and have a chit chat on this. विशाल, चंदन, केरिट सर, हम सबसे मिलने क्यों ही होते? हमें ऐसा नहीं कि सर हम भी है ना आप जैसे ही, किसी को लगता रहेगा ना हम बहुत बड़े हैं, हम कोई बड़े नहीं, हम भी वैसे ही जगह से आए हैं जैसे आप हो, हम उससे भी हो सकता है छोटी जगह से आए, तो हमें ऐसा कोई कभी विशाल बोलते हो ना मैं अमीर बाप की औलाद, तो मैं 2 कान के नीचे लाफा बजा दूंगा। मैं कभी बोल दूं सर हम सब एक ही हैं, मैं भी डिटेल हूँ, वो विशाल FII नहीं है, चंदन DI नहीं है, हम में से कोई कुछ भी नहीं है, हम सब रिटेल ही हैं। कोई बोलता है ना कि मैं क्लाइंट, सर चलो सर लास्ट 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांटेड टू। केतन भाई कल आप आ जाना, आज आप फंडामेंटल कुछ भी दोगे, इस टाइम पे आपका फंडामेंटल नहीं लेते, डोंट फील बैड, जब फंडामेंटल करेंगे केतन भाई पक्का आ जाना। तो हाँ वो देखो ये प्यार होता है कि किसी को मैं बोल सकता हूँ सामने से, ये रिस्पेक्ट और प्यार होता है। हाँ अभी अभिषेक मिश्रा और मनी आइस, भाई तेरा मनी आइस तो मुझे इतने मैसेज करता है, अपनी फोटो भी पता नहीं क्या क्या डाला है, प्राची के पास मेरा नंबर है, आधे लोगों को मेरा नंबर होता है यार, तो मैं मनी आइस तेरा नंबर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो हो जाता है। या अभिषेक यू हैव अ क्वेश्चन, एंड विद these 2 last question, Abhishek and Money Eyes, we'll end this case. हेलो, हाय सर। हाँ जी अभिषेक बताइए। सर अभी डाउ फ्यूचर्स में चार्ट देख रहा था, ये एक डाउट था मेरा कि 17,000 सर जब 20 ब्रेक हुआ तो अब तो मेजर सपोर्ट है, तो सर रेजिस्टेंस तो सर हमारा 17,300 ही है ना सर, कि वो जो ट्रेंड लाइन जो ट्रो हो रही है तो मुझे ट्रेड करते हो, डाउट ट्रेड करते हो? नहीं सर, तो किस्सा खत्म हो गया, मुझे क्वेश्चन पूछने का। अमित मैं तो करता हूँ ना, मेरे को जवाब दे लेने दे भाई। अरे हाँ तेरे को कल ही वीडियो भेजा मैंने। हाँ सर देखा था वीडियो आपका, देखा था सर। हाँ बताओ बताओ। नहीं अमित की बात कर, आपको नहीं भेजा। नहीं मैं ये बोल रहा था कि जब हमारा जब 17,020 टूटा, पहले वो हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो बिगेस्ट सपोर्ट है, तो सर जब भी जो डाउन जा रहा है मार्केट, तो सर वो फिर से सपोर्ट से बाउंस करेगा मंडे को। सर अगर सपोर्ट से बाउंस होना और रेजिस्टेंस से बाजार गिरना इतना ऑब्वियस होता तो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में हर आदमी तो चार्ट देखता है, हर आदमी के पास में वही सपोर्ट है और वही सबको वही चीज दिख रही है, तो फिर हर आदमी पैसा बनाता था बाजार में। सर 9 महीने से तो बना रखता हूँ सर, 6 लाख से 42 लाख पहुंच गया। चलिए बधाई हो आपको, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। नहीं विशाल सुन ना, अपन तो है, मतलब अपन तो वही झोपड़पट्टी वाले, आपसे पूछ लेंगे कैसे पैसा बनाने का। नहीं सर, सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ 10 लाइन पर चार्ट बनाता हूँ, ट्रेड करता हूँ सर। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीएन, चंदन, हर्ष रहेगा, फैल्यू रहेगा, चिराग भी नहीं, सर हमें सिखा दो कैसे करने का होता है। अरे नहीं सर, मैंने खुद से सीखा है सर। आपसे सीख जाएंगे नहीं सर, मैंने सर खुद से सीखा है, कोई मेंटर नहीं है सर मेरा। अरे मैं कब बोला मेंटर चाहिए? अगर नहीं सर, मैंने खुद से सीखा है सर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर करके लॉस खाया है, उसके बाद सीखा है सर। आप वापस मेरी बात नहीं समझ रहे, अगर आप मेरी वापस बात नहीं समझ रहे, अगर आपने 40 लाख बना दी। अमित भाई 1:15 बज गए हैं, आई थिंक लेट्स वाइंड अप ना, 1:15 बज गया है ऑलरेडी, 1:15। सो लेट्स वाइंड अप। यस अभिषेक सर, अपना ये जितने सुनते हो ना आप कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कंसिस्टेंसी है ना सर,
प्योर ऑप्शन सेलर हूँ सर, बाय नहीं करता। भैया आपसे ज्यादा मैं पब्लिक को जानता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मत बोलो मैं किसको ना जानता किसको ना जानता। इंडिया के बेस्ट सेलर्स को जानता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा सेलर हूँ, तो वो चीज टॉपिक एंड कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप अपना सिर्फ एक ही चीज डिफाइन कर सकते हो जिंदगी में। आप एक चीज करते हो कि मैं घर से निकलूंगा, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके जाता हूँ। सेम अपनी ट्रेडिंग में एक ही चीज करके जाओ, मेरा इंश्योरेंस क्या है, मेरा इंश्योरेंस क्या है। अगर मैं, भैया एक सेकंड म्यूट कर लो ना अपने को, मेरा क्या है, मैं घर पे बैठा हूँ, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेरे घर के बाजू में समुद्र है, मेरे घर से समुद्र दिखता है, मुझे कभी नहीं पता वो समुद्र घर पे आ जाएगा, मेरे उसको कोई गारंटी नहीं। विशाल चंडीगढ़ रहता है, चंदन वहाँ कहीं अपना दिल्ली रहता है, हर्ष डोंबिवली रहता है या कल्याण रहता है, कब समुद्र घर पे आ जाएगा हमें नहीं पता। हम एक ही चीज करते ना हमेशा, से यू मे बी 25, यू मे बी 30, यू मे बी 40, क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं कि मैं मर गया तो। क्यों लेने का पॉलिसी, जरूरत ही नहीं ना, क्यों जरूरत है, आपको लगता है आप एकदम परफेक्ट हो, क्यों पॉलिसी लेने की जरूरत है, पर करके जाते हो ना। तो सेम अगर मार्केट में ₹1,00,000 भी डालते हो, Amit, the spaces will crash anytime my battery is at 1%. yes, yes. So वेरी सिंपल कि अपना रिस्क डिफाइन करके चलो कि मैंने अगर कोई सौदा लिया है तो मेरा लॉस कितना होगा, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलने का। जो क्रेडिट सर हमें हमेशा समझाते हैं कि मुझे लॉस कितना हो सकता है, वो चलो मेरे उल्टा भी खुला, उसके बाद भी मुझे लॉस कितना होगा, वो पकड़ के चलोगे, उसके हिसाब से पोजीशन बनाना। और ज्ञान देने के लिए तो है ना भैया, ये हमारे पास कितने लोग हैं, ये तो हम लोगों को बुलाते नहीं।